نگہبان رمضان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کو 10,000 روپے امداد دی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے، بتائیے گا۔ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ حکومت کی جانب سے رمضان پیکیجز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ رمضان پیکیج میں اہل ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور حکومت کی جانب سے رمضان پیکیج کی امداد کی تقسیم کے حوالے سے ایک اہم نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے۔ یہ نوٹس بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے، اور اس نوٹس کے مطابق ہم آپ کو کافی ساری اہم معلومات سے بھی آگاہ کریں گے، کیونکہ اس جاری کیے گئے نوٹس میں کافی ساری معلومات دی گئی ہیں، خاص طور پر یہ کہ رمضان پیکیج کے ذریعے امداد کن لوگوں کو ملے گی، کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ امداد وصول کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے کافی ساری اہم ترین ہدایات بھی اس نوٹس میں جاری کی گئی ہیں۔ تو جو لوگ رمضان پیکیج کے ذریعے اس بار امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سب لوگ اس نوٹس میں بتائی گئی تمام تر معلومات اور اہم ترین ہدایات کو اچھی طرح سے سمجھیں، تاکہ آپ لوگوں کو رمضان پیکیج کی امداد حاصل کرنے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جن جن لوگوں کو اس بار رمضان پیکیج کی امداد ملنے جا رہی ہے، وہ سب لوگ سب سے پہلے یہ اہم کام بھی لازمی کر لیں۔ یہ کچھ اہم اور ضروری کام آپ لوگ اگر آج کر لیتے ہیں تو آپ کو بھی رمضان پیکیج کی امداد حاصل کرنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت حکومت کی جانب سے جتنے رمضان پیکیجز شروع کیے جا رہے ہیں، ان تمام رمضان پیکیجز کی رجسٹریشن کیسے ہو رہی ہے، یا پھر کچھ رمضان پیکیجز کے ذریعے امداد لینے کے طریقہ کار کچھ مختلف قسم کے ہیں، جس طرح نگہبان رمضان پیکیج کے ذریعے پنجاب کی عوام کو کارڈ کے ذریعے امداد جاری کی جائے گی، اور اسی طرح شہباز حکومت کی جانب سے جو پورے پاکستان کی عوام کے لیے رمضان پیکیج شروع کیا گیا ہے، اس پیکیج کے ذریعے جو امداد ملنی ہے یہ آپ کو اکاؤنٹ سسٹم کے ذریعے ملے گی، جس طرح ایزی پیسہ یا جائز کیش والے اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اکاؤنٹس کیسے رجسٹر ہوں گے اور آپ اپنے اکاؤنٹ میں یہ امداد کیسے حاصل کریں گے، تو اس طرح کی کافی ساری اہم معلومات ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ آپ لوگ ان معلومات پر عمل کر کے رمضان پیکیج میں اہل ہو کر اپنی امداد آسانی سے وصول کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ نگہبان کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور نگہبان کارڈ ایکٹیویٹ کیسے ہوگا، اس کے بعد نگہبان کارڈ سے پیمنٹ کیسے نکلوائی جائے گی۔ تو یہ مکمل معلومات آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے رمضان پیکیج کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال کریں گے کہ کیا آپ کو رمضان پیکیج کے ذریعے پچھلے سال کوئی امداد جاری کی گئی تھی؟ اگر آپ کو 5,000 پچھلے سال ملا تھا تو آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں 5,000 لکھنا ہے۔ اگر آپ کو پچھلے سال 10,000 ملا تھا تو آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں 10,000 لکھنا ہے، اور ہاں، اگر آپ کو پچھلے سال رمضان پیکیج کے ذریعے کوئی امداد نہیں ملی تو پھر آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمیں پچھلے سال کچھ نہیں ملا تھا۔ اور آپ سب کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کو پچھلے سال امداد ملی تھی یا پچھلے سال امداد نہیں ملی تھی، وہ سب لوگ اس بار برابر ہیں، کیونکہ اس بار حکومت کی جانب سے نئے سروے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اہل کیا جا رہا ہے۔ جی، تو مکمل تفصیلات کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش بھی کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل سرچ فار یو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پر لازمی سلیکٹ کریں، تاکہ امدادی پروگراموں کے حوالے سے اتھینٹک معلومات آپ سب لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اور اب رمضان پیکیج کے حوالے سے مکمل معلومات کے لیے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یوٹیوب چینل سرچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بار حکومت کی جانب سے مختلف قسم کے رمضان پیکیجز چل رہے ہیں، تو ہر پیکیج میں رجسٹریشن کا طریقہ کار علیحدہ ہے، امداد لینے کا طریقہ کار بھی علیحدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر رمضان پیکیج کی امداد کب سے ملنا شروع ہوگی، اس حوالے سے بھی مختلف قسم کی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو چاہے آپ صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، تو آپ سب لوگوں کے لیے ضروری اور اہم معلومات اس ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل طور پر غور سے سن لیجئے گا، اور خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے تازہ ترین اپڈیٹس بھی اسی ویڈیو میں شامل ہیں کہ اب آپ لوگوں کے جو رمضان پیکیجز ہر صوبے کی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی امداد آپ کو کب سے ملنا شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ لوگوں کو وفاقی حکومت کی جانب سے جو رمضان پیکیج شروع کیا گیا ہے، یہ بھی آپ سب لوگوں کے لیے ہے، اس میں کوئی صوبہ بندی والا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ تو اس رمضان پیکیج کے حوالے سے آپ سب لوگوں کے لیے ایک اہم خبر آ چکی ہے کہ پہلے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پیکیج میں صرف وہ لوگ اہل ہو سکیں گے جن کا بے نظیر پروگرام کا سروے ہو چکا ہوگا، لیکن اب خوشخبری کی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بے نظیر پروگرام کے ڈیٹا کے علاوہ بھی لوگوں کو اس پیکیج میں سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کا بے نظیر پروگرام کا سروے نہیں ہوگا وہ لوگ بھی اس رمضان پیکیج میں رجسٹریشن کروا کے اہل ہو سکیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جن کا بے نظیر پروگرام کا سروے ہو چکا ہے تو ان لوگوں کا ڈیٹا تو حکومت کے پاس موجود ہے، ان کو حکومت اپنی طرف سے یہ پیسے دے سکتی ہے، لیکن جن کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہی نہیں تو وہ لوگ اب کیسے اس میں اہل ہو سکیں گے؟ تو ان لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے شارٹ کوڈ بحال کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر حکومت کی جانب
जानिब से इस तरह के लोगों को अहल करने का फाइनल डिसीजन हो जाता है तो फिर आप सब लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से एक शार्ट कोड जारी किया जाएगा। तो ये शार्ट कोड दो किस्म के हैं, एक 8171 है और दूसरा 9999। तो इन दोनों कोड में से कोई एक कोड आप लोगों के लिए बहाल किया जाएगा। फिर आप लोग इन कोड्स के ऊपर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकेंगे। और अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में जो लोग अहल हो रहे हैं इनको कब से इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी, या फिर सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस रमज़ान पैकेज में कौन कौन से लोगों को अहल किया जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है तो उन लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अहल होने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहलियत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी कि अगर आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल होंगे तो फिर भी आपको रमज़ान पैकेज मिल सकेगा, अगर आप बेनज़ीर प्रोग्राम में से ना अहल होंगे तो फिर भी आपको ये रमज़ान पैकेज मिल सकेगा। तो यहाँ पे बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे का मकसद ये है कि हुकूमत के पास बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के ज़रिए आप लोगों का डेटा पहुँचा हुआ है, तो फिर आप लोगों को रमज़ान पैकेज में इस सर्वे की बुनियाद पर अहल किया जा रहा है। तो इसमें जो लोग भी अहल होंगे उन सब लोगों को 8171 या 9999 से मैसेजेस भेजे जाएंगे और फिर उन लोगों को 10,000 रुपये की इमदाद उनके वैलेट अकाउंट्स के ज़रिए मुंतकिल की जाएगी और ये इमदाद आप लोगों को घर बैठे मिल सकेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये इमदाद अकाउंट सिस्टम के ज़रिए दिए जाने का फैसला किया गया है। तो अकाउंट सिस्टम के ज़रिए ये इमदाद कुछ इस तरह से हासिल करनी होती है कि अगर आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं तो आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलेट सिमें मिल चुकी होंगी। ये वैलेट सिमें जिन जिन लोगों के पास मौजूद हैं उनको रमज़ान पैकेज की इमदाद मिलेगी और इन्हीं वैलेट सिमों के अंदर आपकी इमदाद आएगी और ये इमदाद किसी भी रिटेलर शॉप पर जाकर आप लोग निकलवा सकेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा जहाँ से बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं तो सिर्फ वहीं से पैसे निकलेंगे, बल्कि इसके अलावा किसी और रिटेलर शॉप पर जहाँ पर इजी पैसा या जायज़ कैश की पेमेंट्स विदड्रा करवाई जाती हैं वहाँ से भी आप लोगों के ये रमज़ान पैकेज वाले पैसे निकल सकेंगे। और आपको मजीद ये भी बताते चलें कि जिन लोगों के पास बेनज़ीर प्रोग्राम वाली वैलेट सिमें नहीं होंगी उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि उन्होंने जो बेनज़ीर प्रोग्राम वाला सर्वे करवाया था उस सर्वे में जो सिम रजिस्टर करवाई थी उस सिम के ऊपर उन्हें मैसेज भी मिलेंगे और उसी सिम के ऊपर उनके पैसे आएंगे और उस सिम के ज़रिए उनको ये पैसे भी मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को उस सिम के ऊपर कोई अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिम के ऊपर इजी पैसा या जायज़ कैश के अकाउंट के ज़रिए पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ उन इलाकों में पैसे इजी पैसा या जायज़ कैश अकाउंट में मिलेंगे जिन इलाकों में बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे इजी पैसा या जायज़ कैश की डिवाइसेस के ऊपर मिलते हैं। तो उन्हीं इलाकों में रहने वाले लोगों के इस रमज़ान पैकेज वाले पैसे उनकी सिम के ऊपर इजी पैसा या जायज़ कैश वाले अकाउंट में भी मिल सकते हैं। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए इमदाद की तकसीम का आगाज़ 10 फरवरी के बाद होने जा रहा है। तो इसके लिए आप सब लोग ये दो काम मुकम्मल कर लीजिए। पहले नंबर पर जिन ख़वातीन के सर्वे हो चुके हैं उन ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड चेक करें, अगर उनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा तो फिर आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप सब लोग ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड चेक करें, अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाएं। और दूसरा काम ये करें कि जिन ख़वातीन को रमज़ान पैकेज के ज़रिए पैसे हासिल करने हैं और उनके बेनज़ीर प्रोग्राम वाले सर्वे भी हो चुके हैं तो उस सर्वे के साथ जो रजिस्टर सिम है या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम वाली जो वैलेट सिमें हैं इन दो किस्म की सिमों को भी आप लोग एक्टिव रखें, क्योंकि इन्हीं सिमों के ऊपर आपको पैसे मिलने हैं। और सिम को एक्टिव रखने का मतलब ये है कि जो ही आपकी इमदाद आएगी तो इस सिम के ऊपर आपको 8171 या 9999 की मैसेज सर्विस के ज़रिए मैसेज भी मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारे पैसे आ चुके हैं। और इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए मिलने वाली इमदाद के लिए अपनी अहलियत मालूम करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि बेनज़ीर प्रोग्राम का एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है 8171 वेब पोर्टल। अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहें तो आप गूगल पर सर्च करें 8171। जब आप 8171 लिखेंगे तो आपको पहले नंबर पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आगे आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर अपनी अहलियत मालूम कर सकेंगे। तो ये अहलियत अभी तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शो हो रही है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में आपको रमज़ान पैकेज की अहलियत भी इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। जी, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि वफाकी हुकूमत के बाद हर सूबाई हुकूमत की जानिब से अपने अपने सूबे की आवाम के लिए रमज़ान पैकेजेस शुरू किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर सूबा पंजाब की हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज तैयार किया गया है इसके लिए बहुत बड़ा बजट पेश किया गया है। 47 अरब रुपए का बजट मुकर्रर किया गया है और इस बजट के तहत पूरे पंजाब के 42 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। और अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन पंजाब के हर तीसरे से चौथे घराने को इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा और उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि बहुत ही कसीर तादाद में लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से एक अहम नोटिस जारी
जारी हो चुका है। ये नोटिस आपको वीडियो में दिखाया जा रहा होगा, ये नोटिस आप देख सकते हैं। तो इस नोटिस में जो कुछ लिखा गया है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को एक ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करना चाहता हूँ कि 10 फरवरी से रमज़ान पैकेज के जरिए सुबह पंजाब में निगहबान कार्ड तकसीम होना शुरू हो जाएंगे और लोगों को पेमेंट भी 10 फरवरी के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब ये निगहबान कार्ड लेने का तरीकाकार क्या है और निगहबान कार्ड के जरिए पेमेंट कैसे कैसे वसूल करनी है, तो इसके टोटल 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों पर अमल करके आप लोग निगहबान कार्ड के जरिए अपने पैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर निगहबान कार्ड लेने के हवाले से इस नोटिफिकेशन में कुछ अहम हिदायत आप लोगों के लिए जारी की गई हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यह कहा गया है कि जिन लोगों का PSER सर्वे हो चुका है, यानी कि एक घराने का जो PSER सर्वे किया गया है, तो उस घराने का सरबराह सिलेक्ट किया जाता है। तो जिसको सरबराह के तौर पर सिलेक्ट किया गया है, यानी कि अगर एक घराने में से शादीशुदा मर्द या औरत किसी को भी सरबराह सिलेक्ट किया गया है तो उस सरबराह के नाम पर यह कार्ड आएगा। तो आपके घराने का जो फर्द भी सरबराह के तौर पर PSER सर्वे में सिलेक्ट किया गया है तो उसका शनाख्ती कार्ड चेक कीजिए। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा तो फिर आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो अभी आप लोगों के पास वक्त है, शनाख्ती कार्ड चेक करें। शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर है तो रिन्यू करवा लें। तो इस सूरत में आपका 10-15 दिन तक नया शनाख्ती कार्ड भी बन जाएगा और शनाख्ती कार्ड बनने के बाद आपको रमज़ान पैकेज वाले पैसे भी मिल जाएंगे जी। तो अब दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि जो फ़ोन नंबर आपने PSER सर्वे में रजिस्टर करवाया हुआ है उस फ़ोन नंबर को आप लोगों ने एक्टिव रखना है। ये इस नोटिस में वाज़े तौर पर बताया गया है कि ये फ़ोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी फ़ोन नंबर के ऊपर आप लोगों को पहले अहलियत का मैसेज 80-70 से मिलना है और इसके बाद जब आपका कार्ड प्रिंट होकर आपके करीबी यूनियन काउंसिल में डिलीवर किया जाएगा तो उस वक्त आपको इसी फ़ोन नंबर के ऊपर यूनियन काउंसिल वाले कॉल करेंगे। जब आपको ये कॉल मिल जाएगी तो इस कॉल मिलने के बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा अपने करीबी यूनियन काउंसिल से अपना निगहबान कार्ड हासिल करना है। ये निगहबान कार्ड जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आपने निगहबान कार्ड एक्टिवेशन मरकज पर जाना है। इस सेंटर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपका निगहबान कार्ड एक्टिवेट होगा और जिस बंदे के नाम पर ये कार्ड आया हुआ है उस बंदे की थंब वेरिफिकेशन भी होगी, यानी कि उसका अंगूठा भी लगेगा। और इसके साथ साथ जो फोन नंबर आप लोगों ने PSER सर्वे में दर्ज करवाया हुआ है उस फोन नंबर के ऊपर एक OTP कोड भी मौसूल होगा। तो इसके लिए आपने नंबर भी साथ एक्टिव रखना है। तो इस सूरत में आप लोगों का ये कार्ड एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद आपने कार्ड के जरिए 3 तरीकों से पेमेंट निकलवानी है। पहला तरीका ये है कि बैंक ऑफ पंजाब की ATM पर जाकर आप अपने ये 10,000 रुपए निकलवा सकते हैं। और दूसरा तरीका कार ये है कि आप अपने पैसे हासिल करने के लिए बैंक ऑफ पंजाब के किसी भी रिटेलर एजेंट के पास जा सकते हैं, वहां से भी आपके पैसे निकल आएंगे। और तीसरा तरीका ये है कि आप अपना ये कार्ड से 10,000 रुपए निकलवाने के लिए किसी भी बैंक ऑफ पंजाब के करंट अकाउंट होल्डर के पास चले जाएं, तो वहां पर भी आपके कार्ड से पैसे निकल आएंगे जी। तो इस तरीका कार से आप लोगों की रमजान पैकेज वाली 10,000 रुपए की रकम निकल सकती है। और इस रमजान पैकेज की अहलियत मालूम करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। उस पोर्टल के जरिए भी आप अपनी अहलियत मालूम कर सकेंगे। और इसी तरह जिन घरानों को अभी तक PSER सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से हर घर का सर्वे तकरीबन इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो घराने ये PSER सर्वे करवाने से रह गए हैं उन घरानों के पास अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा है। अगर आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता कर लेते हैं तो कॉल करने के बाद आपका PSER सर्वे वाला फील्ड पर्सन आपके घराने का सर्वे मुकम्मल कर लेगा। तो ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर ये है 0800023445, यानी कि 08,000 पूरा 2345। तो इस नंबर पर कॉल करके आप पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के मेन ऑफिस से रब्ता करेंगे। उस रब्ते के बाद आपके PSER सर्वे वाले फील्ड पर्सन को हुक्म दे दिया जाएगा कि वो आपके घराने का सर्वे करे। तो 2 दिनों के अंदर अंदर आपका ये सर्वे मुकम्मल हो सकता है। तो अगर आप ये सर्वे वक्त पर करवा लेते हैं तो आपको रमज़ान पैकेज के लिए अहल कर दिया जाएगा जी। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि सुबह पंजाब के बाद सुबह सिंध की हुकूमत ने भी रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया है। तो सुबह सिंध में अवाम को 5 से 10,000 रुपए की इमदाद फी घराना दी जाएगी और इस पैकेज के लिए तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए का बजट मुकर्रर किया गया है। और इस बजट के तहत सुबह सिंध के वो लोग अहल किए जाएंगे जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है। तो जिन जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल होगा उनको रमज़ान पैकेज के जरिए 5 से 10,000 रुपए की इमदाद जारी की जा सकेगी। लेकिन ये ज़रूर देखा जाएगा कि जो लोग गरीब और मुस्तहिक होंगे, जिनका गुर्बत का स्कोर कम होगा, उन लोगों को अहल किया जाएगा। और इसी तरह सुबह सिंध में रमज़ान पैकेज
की इमदाद लेने के लिए कोई नया तरीका कार नहीं होगा, बल्कि जिस तरह लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही आप लोगों को ये रमज़ान पैकेज वाले पैसे भी मिल जाएंगे। और इसके बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी रमज़ान पैकेज का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। वहाँ पर 10 से 13 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है, जिसके तहत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के 10 लाख खानदानों को 10 से 12 हज़ार रुपए की इमदाद फी घराना दी जाएगी। ये इमदाद लेने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आप लोगों का अगर एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, तो आपका डेटा भी चेक होगा। और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से उन लोगों को भी सिलेक्ट किया जाएगा जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम का सर्वे नहीं है। तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हर यूनियन कौंसिल की इंतज़ामिया को एक अलर्ट जारी किया जाएगा कि उसने अपनी अपनी यूनियन कौंसिल में मौजूद मुस्तहिक लोगों की निशानदेही करनी है और उनकी बाकायदा लिस्टें बनेगी और इन लिस्टों के ज़रिए लोगों को अहल करके उन्हें ये पैसे भी दिए जाएंगे। जी, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बाद सुबह बलोचिस्तान के अवाम के लिए भी रमज़ान पैकेजेस शुरू हैं। वहाँ पर राशन की सूरत में लोगों को इमदाद मिलेगी या फिर 5,000 रुपए तक की इमदाद नकद कैश की सूरत में भी मिलेगी। तो वहाँ पे भी बेनज़ीर प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया जाता है, तो बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर्ड लोगों को ये इमदाद दी जाएगी। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि रमज़ान पैकेजेस के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बड़ी खुशखबरी है कि माह रमज़ान के महीने की आमद की वजह से आप लोगों की बेनज़ीर प्रोग्राम वाली किस्त जो मार्च में आनी थी वो किस्त एडवांस में जारी करने का फैसला किया जा चुका है कि अब 15-16 फरवरी तक आप लोगों की बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त भी जारी हो जाएगी। और ये नई किस्त आप लोगों को वैलेट सिमों के जरिए मिलने जा रही है, क्योंकि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं, पैसे लेते रहते हैं, उन सब की वैलेट सिमें जारी हो चुकी हैं। इन वैलेट सिमों के जरिए आप लोगों ने रमज़ान पैकेज की किस्तें भी हासिल करनी है और साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तें भी हासिल करनी है। और ये नई किस्त 14,500 रुपये होगी, क्योंकि अब बेनज़ीर प्रोग्राम की जो भी नई किस्तें आएंगी ये सारी की सारी किस्तें 14,500 रुपये की रकम पर मुश्तमिल हो चुकी हैं। लिहाजा आप सब लोग अपनी रमज़ान पैकेज और बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्तों के इंतज़ार में रहें और अपने शनाख्ती कार्ड और सिम नंबर को एक्टिव रखें, ताकि आप सब लोगों के पैसे जब भी आएँ आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि हमारे पैसे आ चुके हैं। और इसके साथ साथ अपने शनाख्ती कार्ड्स को भी एक्टिव रखें, यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हुकूमत की ये पॉलिसी है कि किसी भी इमदादी प्रोग्राम के तहत आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ तो एक्सपायर शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यू करवाने के बाद आपके पैसे आसानी से आपको मिल सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में थैंक्स लिख दीजिए। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।